Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, we are going to start this lecture. So, before the vacations, we were discussing the chapter of the gas power cycles, and in that, we started our chapter with the Carnot cycle, and we discussed the details about Carnot cycle, the different processes that are executed during the Carnot cycle, and the significance or importance of Carnot cycle in the means field of the thermodynamics. So then we discussed the practical uh, ideal cycles like Otto cycle, diesel cycle, Brayton cycle. So now we are going to discuss the some numerical problems based on the these all cycles. So first of all, we are going to solve a problem related to the Otto cycle. So this is example number 9.36 in the book of Sengel. So you can refer that from there. That is the exercise problem. So we are going to discuss the solution of this problem. So first of all, let us discuss the statement of the problem. So in this problem, it says that the compression ratio of an air standard Otto cycle is 9.5, and we know that what is compression ratio? We represent compression ratio with R. Okay, so this is the ratio of the minimum volume and maximum volume. Okay, so maximum volume V maximum upon V minimum is the ratio which is known as compression ratio of the Otto cycle. So in this case, we are given the value of compression ratio. So compression ratio is 9.5 in the Otto cycle. Prior to the isentropic compression process, the air is at 10 kilopascal, 35 degree centigrade, and 600 centimeter cube is the volume. So what we have to see here, it says prior to the isentropic compression. So if we see the cycle here, so let me zoom it in. Now we know what the various processes that are executed during the Otto cycle. So first of all, 1 to 2 is isentropic compression. As you can see, volume is decreasing in the from 1 to 2. So this process is isentropic compression. We have already discussed, and 2 to 3 constant volume heat addition, 3 to 4 isentropic expansion, 4 to 1 constant volume heat rejection. So these are the four processes which are when combined form the Otto cycle. So first of all, this is 1 to 2 isentropic compression. So here we are seeing that prior to the isentropic compression means before the isentropic compression process starts, we are given the values. Pressure is 100 kilopascal, temperature is 35 degrees centigrade, and volume is 600 centimeter cube. Okay, so this is the point before the isentropic compression. Okay, so at point 1, pressure is 100 kilopascal. We already know that atmospheric pressure is around 100 kilopascal. So pressure is 100 kilopascal, temperature is 35 degrees centigrade, and volume V1 is 600 centimeter cube. So at point 1, we are given the value of pressure, temperature, and volume. Means T1, P1, and V1. Okay. Then it says the temperature at the end of the isentropic expansion process is 800 kilopascal. So now we have to find the state at which isentropic expansion process is and it is completed. So this is the process 3 to 4, which is known as isentropic expansion. So now this process starts from point 3 and it ends at point number 4. So here it ends. So at the end of the isentropic expansion process, which is number 4,
the value of the temperature is 800 Kelvin. So here the temperature at the end of the isentropic expansion process is 800 Kelvin, which means T4 is equal to 800 Kelvin. So let me write down the means value. So here T4 will be equal to 800 Kelvin. So let me. So this is the value at this point number 4. Okay. So this is value at this point. Here temperature is 35. Pressure is means 100 kilopascal at point number 1. So now using the specific heat values at room temperatures. So we have to use the specific heat values like the specific heat of air at means constant pressure at constant volume. So Cp की जो वैल्यू होती है that is 1.005, ठीक है, और Cv की जो वैल्यू होती है for air 0.718. These are the constant values of specific heats for the air. और K जो होता है specific heat constants means ratio जो होता है specific heat ratio Cp upon Cv which is equal to K, उसकी वैल्यू होती है 1.4. ठीक है, तो 1.005 को अगर आप डिवाइड करेंगे 0.718 से तो you will get the value of K which is equal to 1.4. So here now we have completed the statement. Now we have to determine the highest temperature and pressure in the cycle. ठीक है, सब फाइंड क्या करना है, highest temperature and pressure in the cycle. ठीक है, so अब देखें साइकिल में हाईएस्ट टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कौन से पॉइंट पे मींस एग्जिस्ट कर रहा है. तो अगर आप इस साइकिल डायग्राम को देखें, पीवी डायग्राम को, तो इसमें अगर आप पॉइंट्स को देखें तो प्रेशर जो है वो मैक्सिमम है पॉइंट नंबर 3 पे. ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द ग्राफ के यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम है 3 पे और 1 पे मिनिमम है, उसके बाद 2 पे ज़्यादा है, उसके बाद 4 है, मैक्सिमम जो है वो है आपका एट पॉइंट नंबर 3. सो नाउ वी नो दैट वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ P3 एंड T3, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि वी हैव टू डिटरमाइन द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द साइकिल. ठीक है, तो इसका मतलब है T3 और P3 आपने डिटरमाइन करना है. बी पार्ट बी में क्या करना है, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इन द किलो जूल. अब आप अगर साइकिल को देखें तो फ्रॉम इन द प्रोसेस 2 to 3 which is constant volume heat addition, or this amount of heat we have to determine how much amount of heat is being added into the system. So Q in find करना है पार्ट बी में. सी में थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है. we have already discussed the expression for thermal efficiency which is this 1 minus 1 upon R power K minus 1. So this is the expression for the thermal efficiency. और इसमें R जो है आपको given है 9.5. value of R is आपका specific heat ratio जो है वो आपका इस प्रॉब्लम में given है which is 9.5. K की वैल्यू आप फाइंड कर मीन्स आपको कांस्टेंट है 1.4 फॉर द एयर. अब हमारे पास हमें इसमें बताया हुआ है कि कोल्ड एयर स्टैंडर्ड assumptions are applied, so therefore means we will use this expression to determine the efficiency. अब इस efficiency तो आप easily find कर सकते हैं क्योंकि R की वैल्यू भी आपके पास given है, K की वैल्यू भी given है, and the efficiency only depends on these two parameters. ठीक है, तो पार्ट 2 ये हो जाएगा. पार्ट सी जो है दी मीन्स बल्कि ये पार्ट सी था, एंड द पार्ट डी इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर. ठीक है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर आपने फाइंड करना है. सो लेट मी show you this is the expression for mean effective pressure, W net upon the difference between V maximum and V minimum. ठीक है, W net फाइंड करके उसको वॉल्यूम के डिफरेंस जो है उससे डिवाइड करेंगे तो आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर मिल जाएगा. सो let me now show you the solution.
Okay, so here we have got an ideal Otto cycle with air as working fluid, compression ratio 9.5. Highest pressure and temperature in the cycle are to be determined. Part A, part B, the amount of heat transferred. C में thermal efficiency find करनी है और D में mean effective pressure is to be determined. Now assumptions इस केस में क्या है, प्रॉब्लम में क्या है, the air standard assumptions are applied. हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि एयर स्टैंडर्ड assumptions क्या होती हैं. काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर नेग्लिजिबल. इनका प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में कोई जिक्र नहीं है, सो देयरफॉर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर नेग्लिजिबल. एयर इज एन आइडियल गैस विद कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट. ठीक है, यहाँ पे आपको ये जहन में रखना होगा कि स्पेसिफिक हीट्स की जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट हैं. ठीक है, अगर वेरिएबल होंगी तो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो डिफरेंट होगा. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल कंसीडर कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट्स. अब स्पेसिफिक हीट्स की जो वैल्यू है वो आपके पास, अगर आप टेबल A2 में जाएंगे तो वहाँ पे एयर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी. Cp इज इक्वल टू 1.005. वैसे अगर आप ये याद कर लेंगे दो वैल्यूज़, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज एयर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमेशा यूज होती रहती हैं प्रॉब्लम्स में. तो I will recommend you to remember these values. Cp is equal to 1.005, Cv is equal to 0.718. R जो होता है universal gas constant, that is 0.287. ठीक है, और K की जो वैल्यू है, K is basically the ratio of Cp and Cv. Cp upon Cv 1.005 को अगर आप 0.718 से डिवाइड करेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी which is 1.4. Now let us start the solution. तो हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम प्रेशर, तो वो है 8.3, T3 और P3 फाइंड करना है. ठीक है, तो अगर आप इस सॉल्यूशन को देखें तो P3 और आपको T3 मिलेगा इस एक्सप्रेशन में से. ठीक है, P3 V3 अपॉन T3 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. ये बेसिकली हमने क्या किया है, ये जो हमारा प्रोसेस है 2 to 3, इस पे हमने आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो हमने अप्लाई की है. ठीक है, क्योंकि हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT या PV अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो उससे क्या होता है कि PV अपॉन T जब कॉन्स्टेंट के इक्वल हो जाता है तो आप P3V3 अपॉन T3 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P1V1 अपॉन T1, ये हम लिख सकते हैं. All the values means these ratios are constant at all these states. तो इस केस में हमने ये आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई की है इन दो स्टेट्स के दरमियान. ठीक है, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो आप किसी भी प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं. 1 to 2 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 to 3 से भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 to 4 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 4 to 1 पे भी अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे जो 4 प्रोसेसेस हैं हमारे पास, चारों प्रोसेस पे आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस हैं. ठीक है, 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 3 to 4 इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन. तो इन पे अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास आइसेंट्रोपिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, देयर आर सम स्पेशल एक्सप्रेशंस, वो हम इन दो प्रोसेस पे जस्ट अप्लाई कर सकते हैं. जिस तरह ये आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है, T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय V1 अपॉन V2 K पावर 1 K माइनस 1. तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज स्पेशली फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस. ये आप 2 to 3 पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं है. दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. ठीक है, तो दिस प्रोसेस कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन 1 to 2 एंड 3 to 4. इन दो प्रोसेस में अप्लाई हो सकता है. इसी तरह हमने स्टडी किया है. लेट मी शो यू दी स्क्रीन. आपके ये जो एक्सप्रेशंस हैं, these expressions, now these three expressions are for the isentropic processes. अब ये जो है, this is the relation between temperature ratios and volume ratios. ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है, this is between temperature and pressure, और ये एक्सप्रेशन है between pressure and volume.
तो ये तीन जो एक्सप्रेशंस हैं ये हमेशा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पे ही अप्लाई होंगे, otherwise these process means expression will not be applied on the other processes. So this must be kept into mind. So let us again go to the solution. So here, because we have got the value of the compression ratio, तो आपका जो कंप्रेशन रेशो जो है वो बेसिकली V1 अपॉन V2 ही है, ठीक है, क्योंकि जो कंप्रेशन रेशो होता है वो होता है V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम। तो V मैक्सिमम आपका V1 है, ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम आपका कौन से पॉइंट पे है, 1 पॉइंट पे या 4 पॉइंट, दोनों एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट 1 and 4, so V1 and is equal to V4। यहाँ पे वॉल्यूम जो है 2 और 3 पे भी कांस्टेंट है, तो V3 is equal to V2। मैक्सिमम वॉल्यूम है V1 पे, मिनिमम वॉल्यूम है V2 पे, तो V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू कंप्रेशन रेशो। तो इस एक्सप्रेशन में आप कंप्रेशन रेशो की वैल्यू पुट कर सकते हैं, व्हिच इज गिवन कि कंप्रेशन रेशो इज 9.5 इन द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने आइसेंट्रोपिक एक्सप्रेशन यूज किया। क्यों यूज किया ये एक्सप्रेशन, क्योंकि 1 to 2 जो प्रोसेस है वो आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पुट किया 9.5, के की वैल्यू 1.4 है, -1 करेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा। T1 जो है वो 35 को में आप 273 ऐड करेंगे तो वो केल्विन हो जाएगा। तो ये आप इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, सॉल्व करें इसको, तो आपके पास T2 की जो वैल्यू है वो आ जाती है, which is 757.9 केल्विन। अब देयर मस्ट बी ए क्वेश्चन कि हमने पहले T1 क्यों नहीं फाइंड किया, T2 पे डायरेक्ट हमने टेम्परेचर T2 फाइंड किया है। तो T1 आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, T2 फाइंड किया बाय यूजिंग दी अवेलेबल डेटा, क्योंकि T2 फिर हमें हेल्प करेगा T3 फाइंड करने में, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस केस में कि हमने मैक्सिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम प्रेशर फाइंड करना है, व्हिच इज एट 0.3, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यूज एट पॉइंट नंबर 2। तो T2 आपका इस एक्सप्रेशन में से आ जाएगा, क्योंकि दिस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। उसके बाद 2 to 3 जो प्रोसेस है, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और इस प्रोसेस में हीट एडिशन हो रही है। और इस पे आप क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन सिंपली अप्लाई करेंगे, तो आपके पास बल्कि सेम प्रोसेस पे यहाँ पे अप्लाई किया हमने पहले आइडियल गैस इक्वेशन। तो P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1। यहाँ से आपको P2 मिल जाएगा इजीली, V1 अपॉन V2 आपको पता है दिस इज इक्वल टू 9.5 कंप्रेशन रेशियो के इक्वल है। तो T2 अपॉन T1, T2 हमने फाइंड किया हुआ है व्हिच इज 757.9, T1 आपको गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई, P1 आपके पास गिवन है इन दी प्रॉब्लम, तो आपके पास जो P2 है उसकी वैल्यू आ जाती है 2338 किलो पास्कल, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि हमने पहले हमारे पास जस्ट पॉइंट नंबर 1 पे जो भी वैल्यूज थी वो अवेलेबल थी। अब हमने स्टेट नंबर 2 पे जो प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। Now with the help of these values we can determine the values at point number 3. Now again 3 to 4 process जो है which is isentropic expansion process है, ठीक है। तो इस isentropic expansion process पे जो है वो आप क्या कर सकते हैं, सेम प्रोसेस अप्लाई मीन्स जो ये एक्सप्रेशन है T3 अपॉन T4 विल बी इक्वल टू V4 अपॉन V3, ठीक है। T3 अपॉन T4 विल बी इक्वल टू V4 अपॉन V3। अब ये सबस्क्रिप्ट जो है इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के वो इन्वर्स हैं। T3 अपॉन T4 जो है वो V4 अपॉन V3 होगा, और उसके ऊपर पावर है K-1। फिर हमने क्या किया, T1 को राइट साइड पे ले आएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो T4 की जो वैल्यू है वो दैट इज ऑलरेडी गिवन, हमें प्रॉब्लम में गिवन था कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के प्रोसेस के एंड पे जो टेम्परेचर है वो आपका था 800 केल्विन, जो आपको प्रॉब्लम में गिवन था इफ यू कैन रिकॉल। तो वो हमने टेम्परेचर यहाँ पे पुट किया, वैल्यू पुट की। V4 अपॉन V3 अगेन अगर आप देखें मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉल्यूम इनका रेशो जो है वो होता है कंप्रेशन रेशो। तो इनकी जगह पे हम वही 9.5 पुट करेंगे,
K minus 1, 1.4 minus 1 will be equal to 0.4. That will be equal to 1969 Kelvin. ठीक है, तो यहाँ से आपको T3 की वैल्यू मिल गई, which was our objective कि हमने मैक्सिमम टेम्परेचर को फाइंड करना था. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द मैक्सिमम प्रेशर जो आपका P3 है. तो वो आप आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो आप अप्लाई करेंगे 3 और 2 के दरमियान. तो P3 V3 अपॉन T3 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. P3 इसको रीअरेंज करके P3 की वैल्यू फाइंड करेंगे. वैल्यूज पुट करें T3, T2 और P2 की. वो आपने सब वैल्यूज जो है वो डिटरमाइन कर ली हैं. जस्ट पुट दीज वैल्यूज एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द प्रेशर विच इज P3. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोट करें तो आपके पास तकरीबन हर स्टेट पे सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं प्रेशर की और टेम्परेचर की. नाउ वी हैव टू डिटरमाइन दी पार्ट बी. पार्ट बी में क्या था, Q in फाइंड करनी थी. Q in is equal to basically mass into change in internal energy. This is the expression for the Q in. ठीक है, तो Q in के लिए एक्सप्रेशन है m इंटू U3 माइनस U2. अब U3 माइनस U2 की जगह पे आप ये पुट कर सकते हैं CV इंटू डेल्टा T. डेल्टा U is equal to CV into delta T. This is the expression for the internal energy. Internal energy की जगह हमने क्या पुट किया, CV into delta T. ठीक है, mass is again the same. तो just put the values 6.7 88 multiply by 10 raised to power minus 4 kg. 0.718 is the value of the specific heat at constant volume. बाकी आपके पास temperatures जो हैं, अब देखना हमने ये है कि हीट एडिशन प्रोसेस कौन से में हो रही है. हीट इज बीइंग एडेड बिटवीन पॉइंट नंबर 2 एंड 3. तो टेम्परेचर जो यूज होंगे वो होंगे एट स्टेट 3 एंड 2. फाइनल स्टेट पे क्योंकि हीट जब एडिशन होती है तो फाइनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो T3 माइनस T2 करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे CV से, मल्टीप्लाई विद द मास एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द means amount of heat which is being added into the system. अब ये जो मास है ये हमने यहाँ से फाइंड किया है. अगेन जो आपके पास जनरल गैस इक्वेशन जो है वो हमने यहाँ पे पुट की है. मास इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू MRT. ठीक है, तो यहाँ M हमने फाइंड करना है. P1 V1 RT1 ये हमने स्टेट 1 पे अप्लाई की है क्योंकि हमारे पास स्टेट 1 पे प्रेशर भी गिवन था, वॉल्यूम आपके पास 600 सेंटीमीटर क्यूब था. ठीक है, तो उसको हमने पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, उसके बाद मींस 1000 से 2 बार डिवाइड करेंगे तो वो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद मींस हमने पुट किया जो इक्वेशन जनरल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है R इज इक्वल टू 0.287. देन वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जो आपका इनिशियल स्टेट पे 308 था, मीन 35, उसको हमने ऐड किया 273 में तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो गया. ये वैल्यूज आप पुट करके मास की वैल्यू हमने फाइंड की. उसके बाद मास की वैल्यू हमने Q in के एक्सप्रेशन में पुट की है. ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाती है अमाउंट ऑफ Q in दैट इज इक्वल टू 0.590 किलो जूल्स. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग एडेड is 0.590 किलो जूल्स. देन आपको फाइंड करना था एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इक्वल होती है W net अपॉन Q in. Q in तो हमारे पास अवेलेबल है, W net फाइंड करना है. W net फिर होता है इक्वल टू Q in माइनस Q out. ठीक है, W net इज इक्वल टू Q in माइनस Q out. Q in आपने फाइंड की हुई है, Q out फाइंड करेंगे सेम तरीके से जिस तरह हमने Q in फाइंड किया था. तो Q out इज इक्वल टू M into change in internal energy. ठीक है, तो change in internal energy again is equal to CV into T4 minus T1. अब ये आपने देखना है कि Q out कौन से प्रोसेस में हो रही है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट इज बीइंग
रिजेक्टेड ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 4, ठीक है। 4 to 1 जो प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस इन विच हीट जो है इट इज बीइंग रिजेक्टेड। तो अब आपने क्या करना है, जो टेम्परेचर्स हैं वो ये T1 एंड T4 यूज करने हैं। यहाँ पे देखें आप, अगर आप Q आउट में, तो यहाँ पे MCV T4 minus T1. So these are the temperatures which are going to be used while determining the Q out. Q in था प्रोसेस 2 और 3 में, तो इस वजह से हमने ये टेम्परेचर यूज किए थे। इस केस में Q आउट जो है वो REF 1 और 4 स्टेट्स के दरमियान, तो देयरफॉर वी आर यूजिंग दीज टेम्परेचर्स। मास आपने डिटरमाइन किया हुआ है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पुट करेंगे T4 T1, ठीक है, ये इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास Q आउट आ जाएगा which is 0.240 kilojoules. Now what you are going to do, you are going to determine the difference. W net is equal to Q in minus Q out. तो Q in है 0.59, Q out 0.24, तो आपके पास W net आ जाता है 0.350 kilojoules. अब इसको जो आप पुट करेंगे थर्मल एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन में W net अपॉन Q in, ठीक है, तो आपकी एफिशिएंसी आ जाती है 59.4. नाउ अगर दिस इज सीम्स टू बी अ लेंथी प्रोसेस, आपके पास जो सिंपल आइडियल ऑटो साइकिल का एक्सप्रेशन जो है 1 - 1 अपॉन R पावर K - 1, वो एक्सप्रेशन भी आप यूज कर सकते हैं एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए, अगर आप इफ यू कैन रिमेंबर दैट एक्सप्रेशन। अगर आपको वो एक्सप्रेशन याद नहीं है तो सिंपल आपको पता है कि एफिशिएंसी जो होती है वो होती है W net अपॉन Q in, तो तब आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज दैट, और आंसर जो है मस्ट बी सेम, आंसर तकरीबन सेम ही होगा। देन पार्ट 4 इज वी हैव टू डिटरमाइन द मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर में आपके पास V मैक्सिमम V1 तो गिवन था, which was 600 सेंटीमीटर क्यूब, और हमने V2 जो है वो फाइंड करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिटरमाइन दी V2 आप कैसे फाइंड करेंगे, कंप्रेशन रेशो जो होता है वो होता है V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम व्हिच इज R, ठीक है, उसको रीअरेंज करके आप V जो मिनिमम है वो फाइंड कर सकते हैं, which is V minimum is equal to V2, V2 is equal to V maximum upon R, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया है, कंप्रेशन रेशियो का जो फॉर्मूला है उसमें रीअरेंज करके V मिनिमम फाइंड कर रहे हैं which is V2, ठीक है। तो इसमें से V2 फाइंड करेंगे आप, या ये वैल्यू आप पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, रीअरेंज करेंगे तो आपको यूज इसको फाइंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट दिस कैन बी इजी। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो जस्ट फाइंड कर लें V मिनिमम और इसमें पुट करें वैल्यूज, तो आपके पास जो मीन इफेक्टिव प्रेशर आ जाता है वो आ जाता है 652 किलो पास्कल, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दी मींस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट हमने ये डिस्कस किया कि आपके पास आइडियल साइकिल था विद एयर एज वर्किंग फ्लूइड, वी हैड द ऑटो साइकिल जिसमें हम यूज कर रहे थे एयर एज वर्किंग फ्लूइड। कंप्रेशन रेशियो हमें गिवन था 9.5, उसके बाद वैल्यूज जो थी वो हमें गिवन थी मींस स्टेट नंबर 1 पे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम गिवन थे, और एक और वैल्यू गिवन थी पॉइंट नंबर 4 पे एट द एंड ऑफ द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, वो थी टेम्परेचर व्हिच वाज 800 केल्विन। उसके बाद हमें बताया हुआ था कि आपने ये सॉल्यूशन जो करना है वो करना है कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट पे। तो कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट्स की जो वैल्यूज थी वो थी Cp इज इक्वल टू 1.005, Cv इज इक्वल टू 0.718, K की जो वैल्यू है स्पेसिफिक हीट रेशियो 1.4, R आइडियल केस इक्वेशन का जो कांस्टेंट है दैट इज 0.287। तो ये वैल्यूज जो है वो याद कर लें, ये आपको गिवन भी हो सकती हैं इन द एग्जाम, लेकिन आई विल रिकमेंड यू टू रिमेंबर दीज वैल्यूज। उसके बाद हमने क्या किया, आपको बताया हुआ था कि आपने डिटरमाइन क्या करना है, सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर और प्रेशर फाइंड करना था, उसके बाद आपने फाइंड करना था Q in,
ठीक है। Then you had to determine the thermal efficiency. थर्मल एफिशिएंसी के बाद आपको फाइंड करना था मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो हमने वो क्यू इन कैसे फाइंड किया, आपके पास एक्सप्रेशन था इज इक्वल एम इंटू डेल्टा यू, ठीक है। फिर डेल्टा यू जो होता है वो एम इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, वो एक्सप्रेशन बन गया। वहाँ से हमने वैल्यूज पुट की और क्यू इन फाइंड किया, उसके बाद क्यू आउट फाइंड किया, इनका जो डिफरेंस है वो फाइंड किया, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट। डब्ल्यू नेट को फिर क्यू इन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाती है। देन वी हैव डिटरमाइंड द मीन इफेक्टिव प्रेशर, वो होता है आपका डब्ल्यू नेट अपॉन डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉल्यूम। तो वो हमने वैल्यूज फाइंड करके जब पुट की प्रॉब्लम में, तो वी हैव डिटरमाइंड दी वैल्यूज ऑफ मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है। तो इन दिस प्रॉब्लम आपका जो ऑटो साइकिल है उसकी जो एफिशिएंसी आ रही है विच इज 59.4%, which is way higher than the actual cycles, क्योंकि ये आइडियल साइकिल है, therefore it is showing the efficiency of 59. Normally the values are around 40%, 40 to in the range of 40 to 30. So that's all from this lecture. So I hope you will understand this problem. The students who are who have joined, just solve this problem. अगर आपको और जो स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, just see the recording. I have recorded complete lecture and this is very important problem with respect to your exam. So thank you very much. That's all from this class.